فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں 2 فروری کو میدان کون لگائے گا؟ دو سیاسی جماعتوں میں ٹھن گئی نون لیگ اور جماعت اسلامی آمنے سامنے۔ ضلعی امیر جماعت اسلامی نے ضلعی انتظامیہ پر جانبداری کا الزام لگا دیا۔ الیکشن کا وقت قریب آتے ہی سیاسی جماعتیں اپنی داغ بٹھانے اور پاور شو کے لیے متحرک ہو گئیں۔ 2 فروری کو دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں ایک ہی دن جلسہ کرنے پر دو سیاسی جماعتوں میں معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ جماعت اسلامی اور مسلم لیگ نون نے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں جلسے کے لیے انتظامیہ کو درخواستیں دے رکھی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ پر پھٹ پڑے۔ محبوب الزمان بٹ کا کہنا تھا کہ ہماری درخواست 21 جنوری سے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں پڑی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون نے انتظامیہ کو 2 دن پہلے جلسے کی تحریری اطلاع دی ہے۔ ہمیں 2 فروری کو جلسہ نہ کرنے دیا تو دمادم مست کلندر ہوگا۔ ضلعی امیر جماعت اسلامی محبوب الزمان بٹ کا مزید کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ ایک سیاسی جماعت کی طرف کھلی جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ہمیں زبردستی کہا جا رہا ہے کہ کسی اور جگہ جلسہ رکھیں یا ملتوی کریں۔ 2 فروری کو ہر صورت جلسہ ہوگا اور سراج الحق خطاب کریں گے۔ ہم نے بر وقت انتظامیہ کو انفارم بھی کیا ہے، درخواست بھی دے دی ہے اور وہ مارک ہو کر آگے سیکورٹی کے لیے بھی چلی گئی ہے، لیکن اس موقع پر انتظامیہ خاص طور پر ڈی سی آفس ایک جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہمارے مختلف ایڈورٹیزمنٹ بھی شروع ہو چکی ہے اور تو کسی کی نظر نہیں آ رہی، اور سراج الحق صاحب 2 فروری کو یہاں بھی گھاٹ گراؤنڈ میں انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ جماعت اسلامی کے ضلعی قیادت نے 2 فروری کو جلسہ کے لیے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ کا جائزہ بھی لیا۔ حلقہ N102 سے امیدوار سردار ظفر حسین بھی ہمراہ تھے۔ کیمرامین شہزیب علی کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ عام انتخابات کا کاؤنٹ ڈاؤن، وقت کم، مقابلہ سخت، امیدواروں کی ڈور ٹو ڈور مہم، کہیں جلسے، کہیں ملاقاتیں، کہیں سے حمایت، کہیں سے وعدے۔ فیصل آباد کے صوبائی حلقہ PP 110 سے مسلم لیگ نون کو بڑی کامیابی مل گئی۔ لیگی امیدوار مہر حامد رشید کا نورپور میں بڑا جلسہ، جٹ برادری نے لیگی ٹکٹ ہولڈر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر مملکت لیگی رہنما رانا احسان افضل نے بھی جلسے میں شرکت کی۔ جھنگ میں عام انتخابات کی تیاریاں زور پکڑنے لگی۔ PP 127 سے امیدوار مولانا مسرور نواز کی انتخابی مہم میں تیزی آ گئی۔ بستی عبداللہ جھنگ سٹی نے مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ جھنگ سٹی اڈا ٹانگا کچا ریلوے روڈ کے مکین بھی حمایت کے لیے تیار۔ مولانا کہتے ہیں شہری مرغی کے نشان پر مہر لگا کر کامیاب بنائیں، صحت، تعلیم اور سڑکوں کے مسائل حل کر کے عوام کی آواز بنیں گے۔ چنیوٹ کے حلقہ NA94 اور PP 95 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم، امیدوار سید عنایت علی شاہ اور سید کلیم علی امیر کا حلقے کا دورہ۔ چنیوٹی روڈ، محلہ رشیدہ، تاجہ، بیروالا، ٹھٹا، ٹھاکر سمیت دیگر علاقوں سے مختلف برادریوں نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ کیسر بخاری، سید ثقلین، محسن بخاری، سبطین، الطاف دیگر نے حمایت کر دی۔ مہر عابد جھپا نے علاقہ معززین کے ہمراہ سید عنایت علی کی حمایت کا اعلان کیا۔ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کا کہنا تھا جیت کر ترقیاتی کاموں کا انقلاب لائیں گے۔ جڑانوالا کی سیاست میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ پیپلز پارٹی کو 8 فروری سے پہلے جھٹکا لگ گیا۔ سابق ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی رائے شہباز کلیار نے NA96 میں آزاد امیدوار رائے حیدر علی خان، PP 100 سے نون لیگی امیدوار خان بہادر ڈوگر اور PP 101 سے طلال چودھری کے والد اشرف چودھری کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کلیار برادری اور اہل علاقہ نے بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروا دی۔ رائے شہباز کلیار کا کہنا تھا ہم پوری محنت اور لگن سے امیدواروں کو کامیاب کروائیں گے۔ فیصل آباد کے صوبائی حلقہ PP 113 سے امیدوار سردار مزمل سرور ڈوگر کی کامیاب انتخابی مہم، یوسف آباد، منیاوالا، منصور آباد، فخر آباد، مدینہ ٹاؤن، خیابان کالونی 3 سے بڑی حمایت مل گئی۔ PP 113 میں سردار مزمل ڈوگر کی بیشتر کارنر میٹنگ کامیاب۔ یوسف آباد میں کامران کموکا اور فہیم خان نے گروپ سمیت مزمل ڈوگر کی حمایت کا اعلان کیا۔ منیاوالا میں کونسلر آصف گل سمیت مسیح برادری نے حمایت کا اعلان کیا۔ منصور آباد میں سمیر آصف، فخر آباد میں بابر اشرف اور مدینہ ٹاؤن میں بشارت ڈوگر نے ساتھیوں سمیت مزمل ڈوگر کی حمایت کا اعلان کیا۔ خیابان 3 میں ٹھیکیدار حسن سردار نے مزمل ڈوگر کی حمایت کر دی۔ مزمل ڈوگر کہتے ہیں وکٹ کا نشان جیت کا نشان ہوگا۔ فلم پارک میں جماعت اسلامی نے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا۔ میٹنگ میں ضلعی امیر جماعت اسلامی محبوب الزمان بٹ اور امیدوار PP 114 میاں عبدالستار بیگا نے شرکت کی۔ کارنر میٹنگ
मीटिंग में सदर डिस्ट्रिक्ट बार मियां अनवारुल हक भी शरीक थे। अहले इलाका ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं का हार पहनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी महबूबुल जमान भट्ट का कहना था, मुल्क में अदल इंसाफ की जरूरत है। मुल्क की अवाम को जागना होगा। बिजली और पेट्रोल की कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर हो गई हैं। जो हुकूमत आती है पिछली हुकूमत से जायद कर्ज ले लेती है। तमाम जमातें मुल्क चलाने में नाकाम हो चुकी हैं। आम इंतखाबात ने फैसलाबाद का सियासी माहौल गरमा दिया। लीगी उम्मीदवार PP 117 ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ने लगी। शहरों, गली मोहल्लों, बस्तियों और देहातों में सियासी जोड़ तोड़, जलसे, जुलूस, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स में ख्वाजा रिजवान को भरपूर पजीराई मिलने लगी। मौसम में सियासी पारा हाई होने लगा। फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार PP 117 ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की इंतखाबी मुहिम तेज। यूनियन कौंसिल 129 में चेयरमैन मियां अकील के तवस्सुत से रैली का इनेकाद। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान ने रैली की क़यादत की। मियां अकील के डेरे से निकाली गई रैली का सैफाबाद रोड पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। रास्ते में इलाका मकीनों की जानिब से ख्वाजा मोहम्मद रिजवान पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। कारकुनान की जानिब से ख्वाजा मोहम्मद रिजवान के हक में फलक शगाफ नारे भी बुलंद किए गए। इस मौका पर ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का कहना था कि जैसे जैसे पोलिंग डे करीब आ रहा है, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और अहले हल्का का जज्बा बढ़ रहा है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त कौम की उम्मीदों का मरकज है। हाजी अकरम अंसारी के फर्जंद इफ्तिखार अंसारी, ईमान ट्रेडर्स वाले मिर्जा काशिफ, सेक्रेटरी खुबैब भट्ट, मुतल्लिका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और दीगर भी रैली में शरीक थे। फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार PP 117 ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की एक रोज में कई मीटिंग्स, मुनीराबाद, गानाबाद नंबर 1, गुलशन पार्क, सैफाबाद, बड़ा शेरावाला का दौरा किया। ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और जैनब इंजीनियरिंग वर्कर्स के ओहदेदारान से भी मुलाकात की। इस मौका पर ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का कहना था कि अहले हल्का मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। PP 117 के गयूर अवाम का साथ हासिल है। अल्लाह के फजल से 8 फरवरी का सूरज नून लीग की फतह की नवीद के साथ तुलू होगा। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया। इस मौका पर ईमान ट्रेडर्स वाले मिर्जा काशिफ, सेक्रेटरी खुबैब, हाजी शौकत गुज्जर, मियां राशिद अमीन, सुलेमान हक्कानी, इकबाल हक्कानी, मियां शम्स, राना शिराज, राना सुहेल, अदरीस गुज्जर, अबरार भट्टी, शहजाद, मियां हुमायूं, मियां फहीम, शेख हामिद, मियां हमजा, बाली जट, राना अब्दुर्रहमान, नासिर बाजवा, शेख सुलेमान, यासीन किसाना, मलिक मकसूद, खुशी जट, मलिक अरशद, मलिक मकसूद, मलिक खलीक, मलिक सरदार, चौधरी अमीन जट और दीगर भी मौजूद थे। फैसलाबाद में साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और लीगी उम्मीदवार राना सनाउल्लाह खान की NA-100 में इंतखाबी मुहिम जारी है। राना सनाउल्लाह खान का समनाबाद, मकसूदाबाद, चक मौलवियाना 12 और चक फुलाही में जलसों से खिताब। कहा कि इक़्तिदार में आकर मुल्क को बहरान से निकालेंगे। मियां नवाज शरीफ ही मुल्क की तरक्की का रास्ता है। फैसलाबाद में साबिक वफाकी वजीर दाखिला व लीगी उम्मीदवार NA-100 राना सनाउल्लाह खान के इलेक्शन मुहिम में तेजी आ गई। राना सनाउल्लाह खान ने अपने हलकों के मुख्तलिफ इलाकों में जलसों से खिताब किया। चक फलाई में होने वाले जलसे में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि नवाज शरीफ एटमी धमाके करके पाकिस्तान की दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। 2013 में हुकूमत मिली तो मुल्क में दहशत गर्दी और लोड शेडिंग के मसाइल बहुत ज्यादा थे। हमने 2017 तक लोड शेडिंग और दहशत गर्दी को खत्म किया। इनका मजीद कहना था कि इक्तदार में आकर मुल्क को बहरान से निकालेंगे। मियां नवाज शरीफ ही मुल्क की तरक्की का रास्ता है। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत थी कि पूरी दुनिया ने और अमेरिका के सदर ने 5 बार फोन करके कहा उस वक्त के वजीर आजम को कि खबरदार एटमी धमाके ना करना। भाई क्यों ना करें, हमारा दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान एटमी कुव्वत बन गया है, हम क्यों ना एटमी कुव्वत हासिल करें। उन्होंने कहा कि किसी मुसलमान मुल्क का एटमी कुव्वत होना जो है वो दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त इतनी हिम्मत थी, पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए और एटमी कुव्वत बन गई। इससे कबल राना सनाउल्लाह खान ने चक नंबर 191 मुलवानी हरला पहुंचे, जहां कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। PP 109 से लीगी उम्मीदवार जफर इकबाल नागरा भी इनके हमरा थे। इस मौका पर राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर आएगी। इन्होंने मुलवानी हरला में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का भी ऐलान किया। आप ये 4 साल में देख लें कि कोई तरक्याती काम, ये जो बाईपास बना है ये भी हमने, जो ये 5वें साल में 1 साल के लिए हमें हुकूमत मिली, इस पर उस पर अदम एतमाद करके तो इसमें बनाया हमने। पूरे फैसलाबाद को आप देख लें, पंजाब और पाकिस्तान को देख लें, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। उसने एक ही उसका नारा था
कि मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। राना सनाउल्लाह खान ने PP 116 में समनाबाद और मकसूदाबाद का भी दौरा किया। समनाबाद में अंसारी बरादरी और मकसूदाबाद में कंबो बरादरी से हाजी अलियास कंबो, हाजी जुनेद कंबो और नामुल रहमान कंबो ने मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट की सियासत में बड़ा धमाका। साबिक MPA काजी अली हसन पम्मी ने कैसर अहमद शेख की हिमायत का ऐलान कर दिया। NA 94 से उम्मीदवार सैयद अजहर शाह और सैयद खुर्रम शाह भी दस्तबरदार हो गए। सादात बरादरी ने कैसर अहमद शेख की हिमायत का ऐलान कर दिया है। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन से। वकार घुमन, आगाह कीजिएगा। आज चिन्योट में NA 94 की सियासत में आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है, जिसमें माजी के हरीफ आज एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। साबिक MPA अली हसन रजा पम्मी ने आज अपने साथियों के हमरा मुस्लिम लीग नवाज के जो MNA के उम्मीदवार हैं कैसर अहमद शेख की गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया है। उनके साथ NA 94 के उम्मीदवार सैयद अजहर अब्बास शाह और सैयद खुर्रम अब्बास शाह भी दस्तबरदार होकर कैसर शेख के साथ मिल गए हैं। आज चिन्योट की सियासत में एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें साबिक MPA अली हसन पम्मी ने कैसर अहमद शेख की हमायत का ऐलान किया है। इसके साथ साथ सादात बरादरी के जो अहम सरकर्दा रहनुमा थे वो भी आज की इस बैठक में मौजूद थे, जिसमें कैसर अहमद शेख की हमायत का ऐलान किया गया है। काजी हसन अली पम्मी 3 बार चिन्योट से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में भी वो MPA की नशिस्त पर। वकार घुमन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद गटवाला कमर्शियल हब में पाक वीज ने दूसरा कार मेला सजा लिया। फैसलाबाद के गटवाला कमर्शियल हब में पाक व्हील्स ने दूसरा कार मेला सजा लिया। नुमाइश में 600 से लेकर 400,000 सीसी तक की सैकड़ों गाड़ियां मौजूद हैं। मेले में होंडा, क्या, सुजुकी, MG, BMW, ओडी और टोयोटा की गाड़ियां तवज्जो का मरकज बन गई। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। पाक व्हील्स के काबिल एतमाद प्लेटफॉर्म से तस्दीक शुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, पेंट से लेकर इंजन तक की इंस्पेक्शन के साथ गाड़ी खरीदी या फरोख्त की गई। गाड़ियों की खरीदारी के लिए मौजूद शहरियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जहां गाड़ियों का जिक्र हो वहां पाक व्हीलर्स ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। जी बिल्कुल ऐसा, यही पाक व्हील की एक अच्छी सर्विसेज है। कोई इसमें वो अच्छी वॉलंटरी सर्विस देती है गाड़ी के बारे में, उसकी मेंटेनेंस के बारे में, उसकी टेक्निकली जो फीडबैक है वो एक अच्छा दे देते हैं वो। मेरे पास होंडा विजल है 2015 मॉडल। सेल करने आए? हाँ जी, सेल करने आया हूँ। आया अभी तक कोई ग्राहक? हाँ जी, काफ़ी ग्राहक आए हैं, लेकिन अभी मेरे मुताबिक रेट नहीं लगा। रेट नहीं लगा। हाँ जी। तो रेट बनेगा, जो आपका रेट क्या है इस वक्त? 5.3 मिलियन। 5.3 मिलियन है। तो गाड़ी का मॉडल कौन सा है? 2015 मॉडल है। 2015 मॉडल। कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पाक व्हील एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर गाड़ी बाई करनी हो, परचेज करनी हो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। होंडा सिविक रिबॉन है जी। होंडा सिविक रिबॉन है। कौन सा मॉडल है? जी 11 मॉडल है। 11 मॉडल। डिमांड क्या है? ये 20,50,000 है। 20,50,000। कोई कस्टमर आया अभी तक? जी काफ़ी देख के गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अभी क्योंकि 5 बजे तक है तो और भी देखेंगे, ज़ाहिर सी बात है। ठीक है। कैसा लगता है आपको ये पाक व्हील्स के प्लेटफॉर्म से गाड़ी सेल करना, और कैसा एक्सपीरियंस है? जी देखें, जब गाड़ी का नाम आता है तो पाक व्हील का नाम लाजमी आता है। ये नो डाउट एक ब्रांड है पाकिस्तान में, पाक व्हील जो है, चाहे गाड़ी लेनी हो चाहे बेचनी हो। और ये जो कार मेला इन्होंने लगाना शुरू किया है क्रॉस सिटीज़, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे जेन्युइनली गाड़ियाँ जो सेल भी होती हैं और परचेज भी लोग करते हैं, और मैंने सेल भी करनी है और परचेज भी करनी है, मैं देख भी रहा हूँ। पाक व्हील्स के मार्केटिंग मैनेजर फरहान का कहना था कि पाक व्हील्स ने हमेशा अपने सार्फिन के लिए आसानियां पैदा की हैं। फैसलाबाद का रिस्पांस बहुत बेहतरीन रहा। उम्मीद है बहुत जल्द इस नौयत के मजीद मौका फैसलाबाद की आवाम को फराहम करेंगे। आप जो है अपनी गाड़ी खुद बेच सकते हैं, और आप खुद बेचेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो ज्यादा अच्छी प्राइस पे बिकेगी, क्योंकि बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। बट अगर डीलर से बेचना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। अगर आप वैसे हमने सेलेक्ट फॉर मी सर्विस भी एक इंट्रोड्यूस करा दी है, जिसके जरिए आप गाड़ी पाक व्हील पे लेस कराते हैं। हमारा नुमाइंदा ही जो है वो आपका गाड़ी का ऐड लगाता है, इंस्पेक्शन करता है और कॉल सुनता है, और जो आपके पास ऑफर होती है वो आपकी जो है डील करवा देते हैं। पाक व्हील्स मेला के मुंतजमीन का कहना था कि गाड़ी खरीदना और बेचना सबसे मुश्किल काम होता है। इस प्लेटफॉर्म का मकसद खरीदार और फरोख्त करने वालों को आमने सामने करना और पाक व्हील्स की तस्दीक दरमियान में शामिल कर देना है, ताकि फरीकैन को एक बाएतमाद प्लेटफॉर्म के जरिए गाड़ी खरीदने या बेचने का मौका मिल सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। बीज की तहकीक में अपना अहम किरदार अदा करने वाली कंपनी ग्रीन गोल्ड एग्रीसीड की सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया।
फैसला बाद में ग्रीन गोल्ड एग्री सीड ने सालाना तकरीब सजा ली। पुरवकार तकरीब में पाकिस्तान भर के सीड डीलर्स ने शिरकत की। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट से नजर इकबाल, PARC इस्लामाबाद से डॉक्टर मुजम्मल हुसैन और महकमा अयूब सर से डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने शिरकत की। डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन अयूब सर से डॉक्टर इम्तियाज हुसैन, CEO हाई सेल सीड कंपनी डॉक्टर असलम यूसुफ भी तकरीब का हिस्सा थे। चीफ साइंसदान अयूब रिसर्च डॉक्टर रियाज अहमद, हाफिज साद बिन मुस्तफा ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में साल साल से अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले डीलर में इनामात तकसीम किए गए। CEO मियां गुलजार अहमद का कहना था कि ग्रीन गोल्ड एग्री सीड कामयाबी की मनाजिल तय कर रही है। डीलर्स ही कंपनी की जान है और इन्हें आज इनामात से नवाजा गया। ये डीलर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसको शाबाश देंगे तो आगे चलेगा, क्योंकि डीलर का काम है कि फार्मर तक पहुंचना, फार्मर तक उसने पहुंचना, हमने डायरेक्ट नहीं पहुंचना। फार्मर उसको अच्छे से अच्छा सीड सप्लाई करना है जो उसकी पैदावार में बेहतरी ला सके और उसको अच्छा मुनाफा हासिल हो सके। इसका सारे काम का जो दारोमदार वो डीलर पे है। मेहमान खसूसी डायरेक्टर जनरल फेडरल सीड सर्टिफिकेशन मोहम्मद आजम, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट से डायरेक्टर डॉक्टर नसीम बेगम ने तकरीब में शिरकत की। शुरा का कहना था कि ग्रीन गोल्ड कामयाबी से अपना सफर तय कर रही है। हाइब्रिड बीजों के साथ आम बीज की तैयारी पर भी काम करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान को बाहर से बीज ना मंगवाना पड़े। ग्रीन गोल्ड किसानों को सहूलत देने में अहम किरदार अदा कर रही है। फसलें अच्छी पैदावार दे रही हैं। ये अभी भी पाकिस्तान 50 अरब का सीड इम्पोर्ट कर रहा है। अगर यही सीड की जो प्रोडक्शन है हमारे पाकिस्तान में हो तो हमारा एक खतीर ज़रिए मुबादला बचेगा। बल्कि ना सिर्फ ज़रिए मुबादला बचेगा बल्कि उसकी जो कास्ट है सीड की वो भी कम होगी। पाकिस्तान के लिए बहुत खुशहाली बात है और पाकिस्तान के जो फार्मर्स हैं वो इस चीज़ के मुतलाशी थे कि उनको हाई क्वालिटी का सीड जो है वो लोकली मिले, कम प्राइस पे मिले। तो माशाल्लाह इनका बहुत ज़बरदस्त सेटअप है और हम इनको बतौर फेडरल गवर्नमेंट का इदारा फुली अप्रिशिएट भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। ग्रीन गोल्ड एग्री सीड फैसलाबाद की वो वाहद कंपनी है जो कि बीज की तहकीक में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। मुल्क के ज़रिए शोबे में मजीद तहकीक की गुंजाइश मौजूद है जो कि मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ फसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद।